Good morning, students. Today is going to be an introduction lecture. ये आपका इकोनॉमिक्स का पहला लेक्चर होने वाला है for 11th standard. So today there won't be any studies. What we will be doing is it's an introduction lecture. So what I'll be doing is I'll give you some idea. I'll give you some turn. आपको एक पता चलेगा कि ये साल आपको सब्जेक्ट में क्या करना है. So what I'll be doing is we will do some introductory lectures today. So I will divide the lecture into 3 parts. First is going to be about me. I'll give you a little bit of my introduction, as you should know who am I and what am I teaching and what are my subjects and everything, as we haven't met. Second part is going to be about subject introduction. I'm going to introduce you to economics. And third, the last one is I will tell you some of the chapters which we are going to do this year. Okay, so let's get started. Let's start with my introduction. My name is Archie Vaishnav, and something I'll let you know about myself is my dad used to work in a bank, so he had a transferable job. So I have been going around lot of cities and different metro cities I have been brought up into. So I used to stay in Mumbai, and then I completed my graduation and post-graduation from NMIMS, which is Narsimha Institute, and I did my BCom and MCom with specialization in advanced accountancy and economics. I used to teach right from 12th, when I was in 12th standard. I love teaching. Teaching is my passion, and I used to teach ICSE board when I was in Mumbai. I got married, I came to Baroda, and I have been into teaching field from last 11 years. Subjects, as far as the subjects which I deal with is economics, any theory subject basically. So I'll be teaching you economics for the entire year. Certain things I want from you guys. ये पहला साल है, हम लोग मिले भी नहीं हैं, और बस ऐसे मोबाइल टू मोबाइल वर्चुअल हमारी पढ़ाई चल रही है. सो आई वॉन्ट सर्टन डायलॉग्स. आई वॉन्ट कि आप डाउट्स मुझे पूछो. आई विल लेट यू माई नंबर. मैं आपको मेरा नंबर व्हाट्सएप कर दूंगी, तो मेरा नंबर आपको मिल जाएगा. तो आपको कुछ भी डाउट हो, आपको कुछ प्रॉब्लम हो, आपको कुछ नहीं समझ में आए, तो प्लीज फील फ्री टू मैसेज मी. ओके, सो आई कैन सॉल्व योर डाउट्स. तो ऐसे ही थोड़ा मज़ा भी आएगा, और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बस ये मैम खाली मोबाइल में दिखते हैं बट शी इज़ नॉट विद अस. सो दैट इज़ व्हाट इट इज़, यू नो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो एवरीवन प्लीज़, मैं व्हाट्सएप पे आपको मेरा नंबर भेजूंगी, आप नोट डाउन कर लेना, एंड यू कैन आस्क मी डाउट्स. ओके, नाउ कमिंग टू सब्जेक्ट. ओके, यू हैव टेकन कॉमर्स, एंड कॉमर्स में वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट इज इकोनॉमिक्स. आई एम श्योर आपने 10th स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक्स पढ़ा है. आई एम श्योर अबाउट इट. बट इफ यू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स इन 10th स्टैंडर्ड, कैन आई से इट वॉज पार्ट ऑफ सोशल स्टडीज. सोशल स्टडीज की बुक में देयर वाज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स. सो इकोनॉमिक्स वॉज नॉट अ सेपरेट सब्जेक्ट. Economics was part of social studies. Now many students have a misconception. बहुत सारे बच्चों को एक गलत फहमी है कि इकोनॉमिक्स में तो क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में बस यही कंट्री के बारे में, यू नो, देयर इज लॉट ऑफ पॉपुलेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये चैप्टर्स हैं, तो वी कैन मैनेज, वी विल रीड एंड वी विल गेट इट ऑन आवर ओन. दैट इज lots and lots of students have told me कि आर्ची मैम इकोनॉमिक्स में तो रट्टा मारना है और इकोनॉमिक्स में खाली एंड मोमेंट पे पढ़ना है, तो वो तो हो जाएगा. आई विल टेल यू समथिंग. इकोनॉमिक्स 10th स्टैंडर्ड में जो था और 11th स्टैंडर्ड में जो होने वाला है,
उसमें इतना डिफरेंस है, देयर इज गोइंग टू बी सो मच ऑफ डिफरेंस बिटवीन द सब्जेक्ट्स दैट बिलीव मी 2 महीने में, 2 महीने में नहीं, 1 महीने में बहुत सारे बच्चे मुझे मिलते हैं और मुझे कहते हैं कि आर्ची मैम 10th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स और 11th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स में कितना डिफरेंस है कि हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा पढ़ाई में आएगा. इकोनॉमिक्स इज गोइंग टू बी सो डिफरेंट. Yes, the answer is yes. You have taken commerce. Commerce में one of the subject, main subject is economics. So you can't say कि economics आपने जो 10th standard में किया था population poverty वैसा ही होगा. वैसा नहीं है, बहुत different है. And economics में you won't believe. बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम it's a theory subject. I don't believe it's a theory subject. क्योंकि इकोनॉमिक्स में ग्राफ्स आएंगे, फॉर्मूला आएगी, सम्स आएंगे. यू आर शॉक्ड राइट? यस, इकोनॉमिक्स में देयर वुड बी सो मेनी practical aspect of economics. There's going to be so much of graphs and drawing and diagrams, and then there is going to be a lot of formula. There's going to be sums in it. So those people who took commerce just by thinking कि ओके यू नो साइंस में बहुत मेहनत नहीं करनी है, करनी पड़ेगी, कॉमर्स में नहीं करनी पड़ेगी, तो हम कॉमर्स लेते हैं, तो ऐसा नहीं है. ओके, इकोनॉमिक्स इज गोइंग टू बी इक्वली डिफिकल्ट फॉर यू. तो मैं आपको आज थोड़ा आइडिया देती हूँ. आई जस्ट गिव यू अ बिट ऑफ आइडिया टुडे अबाउट इकोनॉमिक्स. ठीक है, फिर जब कल लेक्चर्स शुरू करेंगे दैट आई लेट यू नो कि व्हाट आर वी डूइंग. ओके, नाउ as far as economics is concerned, तो पहले मैं आपको थोड़ा आइडिया दूं कि what is economics. Tell me one thing, आपने इकोनॉमिक्स लास्ट 1-2 साल से आप पढ़ रहे हो, तो आपने कभी सोचा है कि इकोनॉमिक्स वर्ड जो है, वर्ड उसका मीनिंग क्या है? What is the meaning of the word economics? First of all, you should know that. The reason is because आपको इकोनॉमिक्स वर्ड का ही मतलब नहीं पता है. तो इन दैट केस उसके अंदर क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है वो नहीं समझ में आएगा. तो आज आपको पहले तो ये पता होना चाहिए दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इकोनॉमिक्स, व्हिच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ इकोनॉमिक्स. नाउ इकोनॉमिक्स इज एन इंग्लिश वर्ड, बट originally it comes from Greek word which says oikonomia. Oikonomia, oikonomos, बहुत सारे अलग अलग words हैं. Now what is oikonomia? That means oiko and nomia. Oiko stands for household, nomia stands for nomium stands for management. So it is study of household management, management of household. Now what is management of household? ना सी मैं आपको एक थोड़ा पहले आइडिया देती हूँ, समझाती हूँ, फिर मैं इसके ऊपर आती हूँ. You know, economics compared to other subjects is a very fresh and a very new subject. अगर आप मैथ्स ले लो, हजारों सालों से मैथ्स पढ़ रहे हैं, हजारों सालों से. अगर हम लोग स्पेस स्टडी, बायोलॉजी, मेडिसिन, फिजिक्स, ये सब के बारे में अगर हम हिस्ट्री देखेंगे ना कि ये कितने सालों से लोग पढ़ रहे हैं, यू वोंट बिलीव दीज सब्जेक्ट्स आर thousands and thousands of year old. बहुत साल हो गए मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, ये सब पढ़ते पढ़ते. बट और वो सब्जेक्ट इतने पुराने हो गए हैं अभी कि वो सब्जेक्ट में सैचुरेशन पॉइंट आ गया. यू नो व्हाट इज सैचुरेशन पॉइंट? नहीं, ऐसा नहीं कि सब बोर हो गए पढ़ते पढ़ते, वो वाला नहीं. सैचुरेशन पॉइंट का मतलब है कि ये सब्जेक्ट्स अभी इतने पुराने हो गए हैं कि उसमें कुछ नया इन्वेंशन, कुछ नई डिस्कवरी, कुछ नए फॉर्मूलाज, कोई नए लॉज नहीं बनते हैं. कुछ खास उसमें नया नहीं है. एवरीथिंग इज डन, इट इज सैचुरेटेड सब्जेक्ट. बट
Compared to that, economics is a new subject. Economics have been studied from last 300-400 years. आप बोलोगे मैम 300-400 years आप न्यू सब्जेक्ट कहते हो? हाँ, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट तो हजारों साल हो गए, इसको इतने साल नहीं हुए हैं. एंड दैट इज वाई यू विल अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक्स में डे इन डे आउट कुछ ना कुछ नया, कुछ नए लॉज, कुछ नया अंडरस्टैंडिंग, कुछ नया होता ही रहता है इकोनॉमिक्स में. एंड इकोनॉमिक्स में अभी आपको समझाऊंगी तो पता चलेगा इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो उसमें करने के लिए भी बहुत कुछ है. देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इन इकोनॉमिक्स. यू कैन नॉट बिलीव कि इकोनॉमिक्स कितना बड़ा सब्जेक्ट है. मैं बाद में आती हूँ उसके ऊपर. सो इकोनॉमिक्स में पहले जब नए नए आया था फ्रॉम द ग्रीक एरिस्टोटल, दैट टाइम इट वाज अ स्टडी ऑफ हाउसहोल्ड, स्टडी ऑफ हाउसहोल्ड मैनेजमेंट. दैट इज नथिंग बट एक घर में जो एक्टिविटीज होती है उसको मैनेज करो. घर में एक्टिविटीज होती है, कुछ भी, पैसों का भी एक्टिविटी घर में तो होता ही है ना. वी डू लॉट ऑफ एक्सपेंसेस एंड देन डैड अर्न्स मनी फॉर द हाउस होल्ड, तो वो मैनेज करो. घर में जो एक्टिविटीज है, क्लीनिंग है, घर को मैनेज करना है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, इस महीने हम जो बजट बनाएंगे उसमें फ्रिज लेना है, तो देन समथिंग एल्स हैज टू बी सैक्रिफाइस, राइट, बिकॉज हमारे फादर की इनकम एक प्रपोर्शनेट इनकम है, एक लिमिटेड इनकम है. तो ये सब डिसाइड करना, डिस्कस करना कि इस साल बच्चों की फीस ज़्यादा हो जाएगी तो हम फॉरेन ट्रिप कैंसिल करते हैं, यू नो, ऑल दीज थिंग्स, वो सब मैनेज करना was part of economics. But believe me, now it's not like that. ये बहुत पुराना है, ठीक है. जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, economics is nothing but study of day-to-day activities of human beings. So we will be studying, believe me, we'll be studying day-to-day activities. किसकी day-to-day activities? सारे human beings की day-to-day activities. So can I say, ये अभी आपको समझ में आएगा कि why I was saying this economics subject is so vast. हम लोग पढ़ने वाले हैं day-to-day activities of human beings. So tell me one thing, human beings हर जगह पे है, मानते हो आप? पूरा वर्ल्ड चेक कर लो, इट्स मेड अप ऑफ ह्यूमन बींग्स. इंडिया चेक कर लो, मेड अप ऑफ ह्यूमन बींग्स. गुजरात, बड़ौदा चेक कर लो, मेड अप ऑफ ह्यूमन बींग्स. तो कैन आई से हर जगह पे ह्यूमन बींग्स है, और ह्यूमन बींग्स की हमको डे टू डे एक्टिविटी पढ़नी है. डे टू डे एक्टिविटी, एवरीथिंग, राइट फ्रॉम स्लीपिंग, स्टडिंग, playing games, watching TV, going out with friends, वो आपकी एक्टिविटी हुई. मेरी एक्टिविटी हुई टीचिंग, क्लीनिंग, मेकिंग फूड, ओके, गोइंग आउट विथ फ्रेंड्स, शॉपिंग, सब कुछ आएगा, सब कुछ ह्यूमन बींग्स. जस्ट इमेजिन करो, ह्यूमन बींग्स में सब आते हैं. छोटा बच्चा भी आता है और कोई ओल्ड एज भी वाला भी आता है, मेल्स भी आते हैं, फीमेल्स भी आते हैं, हर एक ह्यूमन बींग. और हर एक ह्यूमन बीइंग की डे टू डे एक्टिविटीज हम पढ़ेंगे. तो दैट इज व्हाई दिस सब्जेक्ट इज सो वास्ट. टेल मी वन थिंग, गवर्नमेंट के बारे में, यू नो, एवरी टाइम आई विल कम टू दिस मोबाइल फोन फॉर द लेक्चर्स, यू विल थिंक दैट अर्ची मैम हर बार कुछ नया नया टॉपिक लेके आती है, कुछ दो तीन टॉपिक में कुछ कनेक्शन नहीं दिखता, ऐसा आपको लगेगा. रीजन ये है कि हर बार मैं लेक्चर लेने आऊंगी ना तो मेरे टॉपिक्स बहुत अलग अलग होंगे, क्योंकि आई हैव टू कवर डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स. कभी मैं क्लास में आऊंगी तो मैं बोलूंगी चलो आज गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं, तो आप ऐसा मत पूछना मैम क्यों आज गवर्नमेंट, इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट कैसे आ गया. इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट भी आता है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कौन चलाता है? ह्यूमन बींग्स, राइट. तो ह्यूमन बींग्स की डे टू डे एक्टिविटीज में गवर्नमेंट आता है या नहीं आता है? सो गवर्नमेंट के जो डिसीजंस होते हैं वो लास्ट में तो कौन लेते हैं? ह्यूमन बींग्स ही लेते हैं. तो हम वो भी पढ़ेंगे. चलो कभी मैं क्लास में आऊंगी तो मैं बोलूंगी लेट्स स्टडी अबाउट बिजनेस.
तो आप बोलोगे मैम बिजनेस कैसे इकोनॉमिक्स में आ गया? उसके लिए तो हमारे पास बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट है, हम बिजनेस क्यों पढ़ रहे हैं? तो मैं बिजनेस भी पढ़ाऊं, क्योंकि बिजनेस इवेंचुअली तो कौन करता है? ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स बिजनेस भी तो करते हैं ना, तो वो भी हमको पढ़ना है कि बिजनेस, ह्यूमन बींग्स बिजनेस कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कैसा उनका थिंकिंग है, गवर्नमेंट कैसे चलाते हैं लोग, वो भी हम करेंगे। घर का भी डिस्कशन होगा, कभी हम ऐसे ही डिस्कस करके चलो घर कैसे चलाते हैं, तो घर भी ह्यूमन बींग्स चलाते हैं। कैन आई से रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट, हाई कोर्ट, लॉ एंड ऑर्डर, एवरीथिंग यू आर सीइंग अराउंड, आप आजू बाजू जो भी देख रहे हो, बैंक्स आप देख रहे हो, पोस्ट ऑफिस आप देख रहे हो, रेलवे स्टेशन आप देख रहे हो, everything is run by human beings, and that is why this subject is never ending, never ending. It goes on and on and on. आपको पता है मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट इकोनॉमिक्स, थोड़ा डर लगेगा आपको, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जैसे जैसे टाइम जाएगा, थोड़ा स्टार्टिंग में तो हम विल गो स्लो, बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा ना, तो इकोनॉमिक्स में आप देखना धीरे धीरे अकाउंट्स भी आएगा। आप बोलोगे मैम इकोनॉमिक्स में अकाउंट्स कैसे आता है? अरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कौन करता है? ह्यूमन बीइंग करता है ना, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना भी एक ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी है। तो पैसे मैनेज करना, पैसों का मैनेजमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना, वो भी ह्यूमन बीइंग करता है, तो वो भी इकोनॉमिक्स में आएगा। ओके, तो डरना मत, आप अकाउंट्स ठीक से करना। मैं भी कभी कभी बीच में अकाउंट्स डाल दूंगी बीच में, तो आप बोलोगे मैम इकोनॉमिक्स में अकाउंट्स कैसे आता है? आएगा, सब आएगा। इकोनॉमिक्स में बिजनेस स्टडीज भी आएगा, ओसी भी आएगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस भी इवेंचुअली तो ह्यूमन बीइंग्स ही करते हैं, तो वो भी आएगा। ओके, स्टैटिस्टिक्स भी आएगा, क्योंकि डेटा लेना, डेटा कलेक्ट करना, वो भी ह्यूमन बीइंग्स की एक्टिविटीज में आता है। पॉलिटिक्स आएगा। यू वॉन्ट बिलीव there is so many topics which are covered in economics. Economics is about everything. Okay, हम डॉक्टर के बारे में पढ़ेंगे, लॉयर के बारे में पढ़ेंगे, आर्किटेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। कोई ऐसा टॉपिक बचता नहीं है जो इकोनॉमिक्स में नहीं आता है। क्यों? बिकॉज इट इज स्टडी अबाउट डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. I hope you understand. Many students love economics for this reason कि economics में आप कुछ टेक्स्ट बुक से बाउंडेड नहीं हो। हम थोड़ा तो बाउंड रहेंगे क्योंकि हमको सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, बट बहुत मजा आता है इकोनॉमिक्स में। सोचते 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 आप कहाँ तक पहुंच सकते हो, और कोई आपको रोक नहीं सकता, नहीं ये नहीं सोच सकते हो, वो नहीं सोच सकते हो, ऐसा नहीं है। ये सब्जेक्ट में आपको जैसे सोचना है वैसे सोच सकते हो। Nobody can stop you, and that's the beauty about economics. So इकोनॉमिक्स में अपना दिमाग ओपन रखना, ज्यादा घबराना मत। टेक्स्ट बुक के हिसाब से हम लोग जाएंगे फॉर श्योर, बट टेक्स्ट बुक में जो है वैसा ही लिखना है, एग्जैक्ट वही करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप सोच सकते हो, आपको जैसे सोचना है वैसे। तो दैट इज द ब्यूटी अबाउट इकोनॉमिक्स। हाँ, थोड़े उसमें रूल्स रेगुलेशंस भी है, तो दैट आई लेट यू नो व्हेन आई स्टार्ट टीचिंग एक्चुअली इकोनॉमिक्स। बट आई एम श्योर इकोनॉमिक्स आपको बहुत क्रिएटिव लगेगा। जिसको रट्टा नहीं मारना है ना, जिसको लर्न नहीं करना है, कुछ रट्टा नहीं मारना है, समझ के करना है, उसको इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा लगेगा। सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से समझाऊं। इसके लिए मेरे साथ डायलॉग में रहना, मेरे मुझसे व्हाट्सएप करते रहना, कुछ डाउट हो तो पूछते रहना, सो आई कैन एक्सप्लेन यू। ठीक है? तो इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट स्टडी ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। अच्छा, एक चीज मुझे क्लियर करनी है आपसे। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे एकदम टिपिकल 11th स्टैंडर्ड के बच्चे अगर आप हो और 15-16 साल के हो ना, वैसे जवाब देते हो, जो आपकी गलती नहीं है। आप एक्चुअली 15-16 साल के हो और आप 11th स्टैंडर्ड के ही बच्चे हो, तो आंसर आपके वैसे ही आते हैं। आप मुझे जो डाउट पूछते हो, आंसर करते हो,
तो वैसे ही आपके आंसर्स आते हैं। बट कैन यू ट्राई कि जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ो, ये सब्जेक्ट इतना वास्ट है कि आप ये सब्जेक्ट अपने एंगल से मत पढ़ते रहना। आप ऐसा मत सोचना हाँ मैम पर ये मैं तो वैसे ही करता हूं, मैं तो यही करता हूं, मेरा तो यही होता है। आप हमेशा मैं मत करना। आपको ये सब्जेक्ट ऐसे समझना है कि एक कंट्री के एंगल से पढ़ना है। अगर आप कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हो या आपको गवर्नमेंट चलानी है, यू आर रनिंग द गवर्नमेंट, आपको बिजनेस चलाना है, आपको घर चलाना है, तो आप कैसे सोचोगे? आपको है ना ये सब्जेक्ट में आपको रोल प्ले करना पड़ेगा। आपने देखा होगा अकाउंट्स में आपको सोम सर ने बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी भेजे हैं जिसमें सारे टीचर्स रोल प्ले करते हैं, देखा है ना। कभी राहुल सर बिजनेस मैन बन जाते हैं, सोम सर कभी बिजनेसमैन बन जाते हैं, कभी राहुल सर उनसे उनके पास इंटरव्यू लेने आते हैं, कभी वैश्विक सर बेंच का बिजनेस करते हैं, कभी मोहनिस सर कोई स्टेशनरी शॉप चला रहे हैं। आपने देखा होगा रोल प्ले। तो आपको जब मैं घर पे कुछ दूं या आपको कोई टॉपिक समझाने मैं बोलूं कि ये सोचना, ये टॉपिक के बारे में सोचना, तो ये टॉपिक आप 11th स्टैंडर्ड के बच्चे की तरह मत सोचना। आप थोड़े मेच्योर हो जाना, दिमाग से थोड़े बड़े हो जाना और सोचना कि मैं अगर घर चलाऊंगा तो मैं कैसा करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा तो मैं कैसा करूंगा, मैं गवर्नमेंट चलाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं कंट्री चलाऊंगा तो क्या करूंगा। वैसे सोचना तो आपका थिंकिंग और आपकी सोच बहुत अच्छी, बहुत मेच्योर और आंसर्स आप बहुत अच्छे से लिख पाओगे। पर अगर आप एक अरे नहीं मुझे तो यही पसंद है, मुझे तो यही करना है, अरे अगर आप अभी 15-16 साल के हो, अभी आपको गेम्स पसंद होगा, पबजी पसंद होगा, 10 साल के बाद आप कुछ और कर रहे होंगे, राइट। तो आपको सोचना है जनरल सोच, जनरली लोग क्या सोचते हैं वैसे आपको आंसर्स करने हैं। तो ये सब्जेक्ट में आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स हैज 2 ब्रांचेस। इकोनॉमिक्स में 2 ब्रांचेस होती है ना। व्हाट आर ब्रांचेस इज कैटेगरी। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स होते हैं, इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी आप 11th-12th में हो ना तो इकोनॉमिक्स आता है। देखो आपने देखो टेक्स्ट बुक कैसा चेंज होता है। जब आप 10th में थे ना तो इकोनॉमिक्स वाज पार्ट ऑफ सोशल स्टडीज। जब आप 11th-12th में आए तो पूरी इकोनॉमिक्स की अलग बुक हो गई। अभी भी ये बुक में माइक्रो मैक्रो सब मिक्स में है। जैसे आप कॉलेज में आओगे ना तो माइक्रो सब्जेक्ट का बुक एकदम अलग होगा, मैक्रो का बुक अलग होगा। इन द सेंस बुक भी नहीं, एग्जाम भी अलग होगा। यानी आपको कोई पूछेगा ना आज कौन सा एग्जाम है तो आप बोलोगे मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम है। अभी आप क्या जवाब दोगे? मेरा इकोनॉमिक्स का एग्जाम है। तो जैसे जैसे आप आगे के लेवल पे जाओगे ना आपको पता चलेगा कि इकोनॉमिक्स और डिटेल में आता ही रहेगा। लेट्स स्टार्ट विथ माइक्रो। माइक्रो का मीनिंग आपको क्या लगता है? माइक्रो छोटा, राइट? स्मॉल, यस। सो माइक्रो मीन्स छोटा, स्मॉल, पर वो इंग्लिश में होता है। ये इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज आपको मैं सिखाऊंगी। कल से मैं ना थोड़ा लैंग्वेज पे ही वर्क करने वाली हूँ। हम कल से लैंग्वेज पढ़ेंगे थोड़ा। आप बोलोगे मैम इकोनॉमिक्स तो इंग्लिश नहीं होता है। नहीं, इकोनॉमिक्स में जो मीनिंग चेंज होंगे ना आप सोच नहीं सकते हो। लैंड यानी आपके लिए जमीन है, बट इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब कुछ और ही है। तो आपको पहले ये सीखना पड़ेगा कि आर्ची मैम जब लैंड कहते हैं ना तो उसका मीनिंग अलग होता है। वैसे माइक्रो यानी स्मॉल, बराबर छोटा सा, पर वो इंग्लिश में होता है। इकोनॉमिक्स में माइक्रो का मतलब है स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल। एक मिनट, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ओके। उसमें माइक्रो का मतलब है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, सिंगुलर, प्लूरल नहीं। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। स्टडी का मतलब है कि आप एक आदमी के बारे में पढ़ाई कर रहे हो यानी आप उसका एनीथिंग। फॉर एग्जांपल अगर हम सोम सर को लेते हैं, ठीक है,
तो सोहम सर के बारे में हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि सोहम सर हर रोज पूरे दिन में कितने घंटे सोते हैं, क्या उनको खाने में पसंद है, उनको ड्रेसिंग में क्या पसंद है, उनको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने में मजा आता है, उनका फ्रेंड सर्कल कैसा है, उनके फैमिली वाले कैसे हैं। यानी आप सोहम सर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो। सोहम सर एक है, एक पर्सन है, वन सिंगुलर। So when you are studying about Soham sir, it is called microeconomics. That means you are studying about one person, one individual, one human being. Now when I say one person, one individual, it's not only Soham sir, it's not only human beings, it can be anything one. चलो अगर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं SCPL के बारे में, SCPL का एनालिसिस करते हैं, SCPL के कितने ब्रांचेस हैं, SCPL में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, SCPL की फीस क्या है, SCPL में कितने फैकल्टीज हैं, SCPL की कितनी ब्रांचेस हैं। कैन आई से यू आर स्टडिंग अबाउट SCPL, सोहम क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, इट्स अ कंपनी। तो अगर आप SCPL का एनालिसिस कर रहे हो तो भी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स ही पढ़ रहे हो। सो माइक्रो मीन्स एनीथिंग वन, वन पर्सन, one company, one factory, one shop, one restaurant, one state, anything one, कुछ भी one। ओके कोई भी रेस्टोरेंट के बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं, रेस्टोरेंट के बारे में पढ़ाई का मतलब है उसका एनालिसिस। ये रेस्टोरेंट कहाँ पे सिचुएटेड है, उसका लोकेशन क्या है, वो कौन सा क्यूजीन देते हैं, उनका मेन्यू में क्या क्या चीजें होती है, सब कुछ। तो हम एक रेस्टोरेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, एक रेस्टोरेंट, तो इट इज कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज अबाउट एन इंडिविजुअल बोला, नाउ यू कैन से इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल कंपनी, इंडिविजुअल फैक्ट्री, इंडिविजुअल रेस्टोरेंट, एनीथिंग इंडिविजुअल, एनीथिंग वन। मैक्रो यानी ज्यादा, एक से ज्यादा। सो इसका मतलब है स्टडी अबाउट मोर देन वन, study about more than one what, more than one people, more than one companies, more than one restaurants, more than one factories, anything more than one। चलो for example अगर आप कोई पर्टिकुलर स्कूल के स्टूडेंट्स के बारे में पढ़ रहे हो तो स्टूडेंट्स आर मोर देन वन, इट बिकम्स मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलो अगर हम लोग बड़ौदा के बारे में पढ़ाई करते हैं, बड़ौदा के बारे में पढ़ाई, तो बड़ौदा के बारे में पढ़ाई का मतलब है बड़ौदा में कितना पॉपुलेशन है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, कितना पॉवर्टी है, बड़ौदा में कितने रोड्स है, घर है, ब्रिज है, ये सब पढ़ रहे हो तो इट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके लिसन टू मी केयरफुली, व्हाट डिड आई से? जब आप एक के बारे में पढ़ो तो माइक्रो, एक से ज्यादा के बारे में पढ़ो तो मैक्रो, ठीक है। नाउ जैसे मैंने बोला एक से ज्यादा के बारे में पढ़ो तो मैक्रो, एक के बारे में पढ़ो तो माइक्रो। बट काफी बार ऐसा होता है कि कौन से एंगल से आप देख रहे हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अगर मैं बोलूं कि हम लोग IMF में बैठे हैं, हम लोग IMF के मेंबर्स हैं, वी आर IMF मेंबर्स, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, और वहां पे बैठे बैठे हम लोग पढ़ रहे हैं इंडिया के बारे में। नाउ टेल मी वन थिंग, IMF लेवल पे अगर हम लोग बैठे हैं और वहां से हम लोग इंडिया के बारे में पढ़ाई करते हैं कि इंडिया का फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, इंडिया ने कितना लोन लिया है, इंडिया में क्या है, सब कुछ, तो IMF लेवल से इंडिया इज माइक्रो। वो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्री में से एक कंट्री है, तो माइक्रो हो जाता है। आप एंगल चेंज करोगे ना, उस हिसाब से चेंज होगा। पर फॉर एग्जाम्पल हम लोग इंडिया के लेवल से गुजरात के बारे में पढ़े, फॉर एग्जाम्पल वी आर नरेंद्र मोदी, एंड नरेंद्र मोदी के एंगल से हम लोग गुजरात का, अच्छा गुजरात में क्या चल रहा है, गुजरात में ये है, गुजरात में कितना स्कूल बना, गुजरात में क्या हुआ, तो नरेंद्र मोदी को पूरे कंट्री का ध्यान रखना है, तो उसके लिए गुजरात इज जस्ट वन स्टेट, इट बिकम्स माइक्रो।
अच्छा, गुजरात के लेवल पे अगर आप बैठे हो और आपको बड़ौदा का कोई डिसीजन लेना है तो बड़ौदा इज जस्ट वन सिटी ऑफ गुजरात, इट बिकम्स माइक्रो। यानी मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ऊपर के लेवल से आप नीचे का देखोगे ना तो माइक्रो लगेगा, पर नीचे के एंगल से ऊपर का देखो। अगर मैं एक वर्ल्ड में एक कंट्री इंडिया है, उसका एक स्टेट गुजरात है, उसका एक सिटी बड़ौदा है, उसका एक ट्यूशन क्लास SCPL है, उसकी मैं एक टीचर, तो मेरे एंगल से वर्ल्ड वुड बी मैक्रो, इंडिया वुड बी मैक्रो, गुजरात वुड बी मैक्रो, बड़ौदा वुड बी मैक्रो। समझ में आ रहा है? तो आप कौन से एंगल से देखते हो? ऊपर के एंगल से हमेशा नीचे देखना माइक्रो होता है, पर नीचे के एंगल से ऊपर देखना इज ऑलवेज मैक्रो। हमको कौन सा एंगल देखना है? हम कौन है? स्टूडेंट है, ठीक है? तो हम रोल, इसके मैं बोल रही हूँ रोल चेंज होगा। कभी कभी मैं बोलूंगी गवर्नमेंट के एंगल से क्या होगा, तो आपको गवर्नमेंट का, आपके दिमाग में है ना, आपको रोल प्ले करना आना चाहिए। कभी गवर्नमेंट बन जाओ, कभी बिजनेसमैन बन जाओ, कभी स्टूडेंट बन के ही आंसर करो, हमेशा रोल प्ले करने की जरूरत नहीं है। तो एज टाइम चेंजेस यू हैव टू कीप ऑन चेंजिंग एंड आपको रोल प्ले करना पड़ेगा। उस हिसाब से आपको ये सब्जेक्ट बहुत मजा आएगा, समझ में भी आएगा, and you will understand it so nicely that you will start liking the subject. Clear with this everyone? Fine. So subjects में हम लोग chapters, तो मैं जैसे जैसे chapters आएंगे I'll keep on updating you and I'll keep on explaining you in detail. Fine. So that's it for today. This is the introduction lecture. I hope आपको थोड़ा इकोनॉमिक्स समझ में आया हो, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा हमको नहीं करना है। बेसिक इकोनॉमिक्स में कैसा होगा, आपको रोल प्ले कैसा करना पड़ेगा, ये सब आप कर लो ना तो थिंग्स वुड बी वेरी इजी। क्लियर? ओके फाइन। सो आई सी यू टुमारो एवरीवन। कुछ होमवर्क कुछ नहीं है, ठीक है? बोर्ड पे मैं जितना भी लिखूँ ना, आपको मेरे साथ रफ नोट बनाना है कंटिन्यूसली। एक बुक स्पेयर, इकोनॉमिक्स की बुक अलग होनी चाहिए, कोई मिक्सअप नहीं होना चाहिए, बीच में अकाउंट्स आ रहा है, स्टैट्स आ रहा है, नहीं। एक इकोनॉमिक्स की अलग बुक बनाओ, उसमें डेट मारना और डे लिखना, सो आपको समझ में आया। एंड देन मैं जितना भी बोर्ड पे लिखूं उतना रफ नोट मेरे साथ लिखते जाना, फिर आप रिकैप करना और होमवर्क अलग से करना। होमवर्क के लिए यानी इकोनॉमिक्स के 2 बुक बनाओ, एक अपने खुद के नोट्स बनाओ एंड एक होमवर्क का बुक रखना, ठीक है? फाइन, थैंक यू सो मच, आई सी यू टुमारो। #घर बैठे पढ़ो। थैंक यू।